what are the criteria to select the foundation, and then how the, I mean, basic definitions I told you. Apart from that, what I told you, how the soil is going to fail. The soil fails by general shear failure, local shear failure, and the most importantly, third one is punched shear failure. What happens in general shear failure? What happens in local shear failure? And what happens in punched shear failure? That also I told you. Punched shear failure, that also I told you. Got it? So now, uh, after that, uh, the most important thing is a load settlement curve, how they behave. So in the load settlement curve and this diagram, if you remember this much and certain quantities, if you remember, no, you can write it the things. For general shear failure, strain is this much. For general strain is this much, and then angle of resistance is this much, number of blows is this much, relative density is this much. If this is the quantity for general shear failure, same what is the quantity for local shear failure? What is the quantity for local shear failure? Okay, so if you draw the load versus settlement curve, you will get a curve like this. You will get a curve like this, and you will get a definite point here where the load is maximum, where the load is maximum and the settlement takes place maximum, and from that onwards, even if you need not apply the load, settlement will takes place. Settlement will takes place. This is the diagram for load settlement curve for general shear failure. This is the diagram for load settlement for general shear failure. And for this one, the load settlement curve is like this one. Some point is get I will show by hand, and here for punch, whatever the load you apply directly will get it. It's not the clear, the no, I mean graphs are not clear here. One more slide I will show here you. So this is the load versus settlement curve. You'll find this is the load versus settlement curve. Okay, so this is for, this curve is for which one? That is general shear failure, number one. This number two is for local shear failure, and this number three is for punched shear failure. This number three is for punched shear failure. Punched shear failure. Okay, got it. So now here you see here what happens in local shear failure. Whenever you apply the load, initially the settlement will starts increasing. A certain point will come where the load is maximum, and after this point the settlement is also maximum. Even if you don't apply the load, no, then also the settlement will take like this only. So it means here in the low general shear failure, you can locate a particular point. You can locate a particular point where maximum load can takes place. Where maximum load can takes place. Whereas in case of shear failure, the diagram is like this. The diagram is like this. Here, it is not like that a particular point you will get it, but partly you will get. एक पॉइंट हम ऐसा ढूंढ सकते हैं वहां स्ट्रेट लाइन पोर्शन मतलब चेंज होते समय यहाँ पार्टली हम लोकेट कर सकते हैं, यहाँ तो फुल्ली मिल जाता आपको. Here it the load is clearly available, but it is partly available. लेकिन जहां तक पंच्ड shear की बात है, पंच्ड shear failure में लोड अप्लाई करते सेटलमेंट फास्ट होते जाता. यहाँ पर आपको मालूम ही नहीं होता कि कहां पर मैक्सिमम है, कहां पर मिनिमम है.
कहां पर मैक्सिमम है, कहां पर मिनिमम है. सो दिस इज द लोड सेटलमेंट कर्व, लोड वर्सेस सेटलमेंट फॉर जनरल shear failure, local shear failure and punched shear failure. Local shear failure, general shear failure and punched shear failure. Punched shear failure. Got it? So now when you take the diagram, pressure diagram, so below the ground level, so this is the diagram for general shear failure. जनरल शेयर फेलियर के लिए, जनरल शेयर फेलियर के लिए एक इलास्टिक ट्रायंगल आएगा, फिर दो ऐसे पैराबोलिक जोन बनेंगे, फिर एक थर्ड जोन बनेगा और कुछ ग्राउंड लेवल के ऊपर हेविंग भी हो जाएगा. मींस हियर a well defined figure is there, here a well defined figure is there in local shear failure, a general shear failure. But in local shear failure what happens, local shear failure में diagram complete नहीं होता, stress level ground तक नहीं जाता, it is up to here only, elastic zone होता, फिर उसके बाद you will get a load like this. This is the local shear failure. And in case of punched shear failure, यहाँ तो कुछ डायग्राम नहीं बनता. When you apply the load, the settlement will take place straight away. कोई स्ट्रेस साइड में पास नहीं होता. तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, लोड वर्सेस सेटलमेंट जनरल शेयर फेलियर के कैसा रहता, लोकल शेयर फेलियर के लिए कैसा रहता, फिर पंच्ड शेयर फेलियर के लिए कैसा रहता. And you should know what is the diagram for general shear failure, what is the diagram for, then this is general shear failure, local shear failure, and then what is the diagram for punched shear failure. And most importantly, yesterday I told you what are the things, I mean जनरल शेयर फेलियर में और लोकल शेयर फेलियर में प्रॉपर्टीज कैसे रहते. स्ट्रेन यहाँ कैसा रहता, स्ट्रेन यहाँ लेस देन 5% है, वहां पर लेस ग्रेटर देन 20% है. Apart from this, what is the angle of shearing resistance here and angle of shearing resistance there, angle of shearing resistance there, angle of shearing resistance यहाँ कितना है और वहां कितना है, ये भी आपको क्लियरली मालूम होना चाहिए, एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस. उसके बाद नंबर ऑफ ब्लोज यहाँ कितने हैं, नंबर ऑफ ब्लोज वहां कितने हैं. ओके, व्हाट एल्स, डेंसिटी, डेंसिटी यहाँ कितना है और वहां कितना है. These things should be clear to you. Now I hope what is general shear failure, what is local shear failure, and what is punched shear failure. The things are very much clear to you. The things are very much clear to you. The things are very much clear to you. Got it? तो बेसिक डेफिनेशंस मैं एक बार और रिपीट करूंगा, आपको वो मालूम है तो रहने दो, कोई बात नहीं है. बट द थिंग इज you should know what is foundation, you should know what is foundation, and after getting the foundation, what is foundation, and then after knowing the foundation, what are types of foundation, that is deep foundation and shallow foundation, and what are the criteria foundation for selection, and then what else we studied is basic definitions. All the basic definitions we studied, and apart from that, after the basic definitions, what we did is, after the basic definitions, what we did is general shear failure, failure of soil, that is general shear failure, local shear failure, and punched shear failure. Punched shear failure. Okay, got it? So एक पंचिंग शेयर फेलियर, देखिए महेश पंचिंग शेयर फेलियर कुछ भी नहीं है. पंचिंग शेयर फेलियर में क्या रहता, बोलो मैं आपको, जस्ट अ मिनट आई विल टेल यू. पंचिंग शेयर फेलियर में क्या रहता, देखिए आप ये लोड अप्लाई करते, when you apply the load here, यहां पर सॉइल इतना वीक रहता, लूज, मतलब दो टाइप के सॉइल हो सकते हैं यहाँ पर. अगर से सैंड है आपका तो इट इज टोटली लूज. अगर से पंच शेयर फेलियर में क्या होता, यहाँ पर जो सॉइल रहेगा फाउंडेशन में वो लूज सैंड रहेगा, और नहीं क्ले है तो पूरा मतलब लिक्विड टाइप,
लिक्विड टाइप क्ले रहेगा, पतला सा, मतलब whenever you put the load on the footing here, it will go on making settlements, वो दबते चले जाता। तो दिस इज द वीकेस्ट पार्ट ऑफ सॉइल, ये टोटली एक्सपेक्ट नहीं है। पंचिंग शेयर फेल्योर में आप बिल्डिंग पे लोड डालते तो दबने शुरू हो जाता, वो है। जनरल शेयर फेलियर में रेजिस्टेंस रहता थोड़ा, और ऐसा पहले यहाँ पर इलास्टिक जोन बनता, फिर यहाँ दो जोन बनते, फिर यहाँ दो जोन बनता, कभी कभी हेविंग ऊपर तक जाता, मतलब यहाँ पर थोड़ा रेजिस्टेंस है, जबकि यहाँ उससे कम रेजिस्टेंस है। यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है पंच शेयर फेलियर में। पंच शेयर फेलियर में वंस यू अप्लाई द लोड मींस इट इज गोइंग टू बी, आई मीन टोटली डाउनवर्ड्स, totally downwards. This is the case of punched shear failure. Punched shear failure. Got it? See, attendance is very poor. मैं आपको बहुत ढिलाई दे रहा था, अगर से आप ऐसे ही अटेंडेंस कम रहे तो फिर I have to make the strict, I have to make the things worst. आपको प्रॉब्लम होता है, देखो again I am CR, I am responsible for this. HOD sir will ask me, so why the so much less strength is there? What is the reason? You should tell me. ओहो हो, ग्रुप पे लिंक नहीं है, नहीं है जो सेम लिंक है, वो सॉरी, दैट इज द रीजन, आई फॉरगॉटन आई थिंक। सेम लिंक है। सी समटाइम्स, सी अंजलि, समटाइम्स इफ आई फॉरगेट टू सेंड द लिंक आल्सो मींस सेम लिंक यू टेक, बटा सेम लिंक इट इज। Even if I forgot sometime, no, same link you use. I never change the link. It's my mistake. Okay, today I made the mistake. I have forgotten actually. तुम लोगों को बहाने होना, अगर से ऐसा कुछ है तो एक मैसेज भेजना मेरे को, या इतने लोग तब से बेटर सर आज लिंक नहीं आया बोलना, मैं लिंक भेजता था। तुम लोग भी मौका ढूंढते रहते टीचर कब गलती करता। ओके, तो अब मुझे ये बोलो, मैं एक बार और रिपीट करता हूं, देखिए मैं अभी स्लो जा रहा हूं, सिलेबस कंप्लीशन का मत सोचो आप ज्यादा, हमको मेन क्या क्या पढ़ना है इसमें मैं बार बार बोल रहा हूं। आप लोग स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, प्लीज लेते जाओ थोड़ा। एक बेरिंग कैपेसिटी, दूसरा शैलो फाउंडेशन, तीसरा पाइल फाउंडेशन, इसके डिजाइन, और शीट पाइल वॉल, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स। ये 5 चैप्टर हम टोटल 8 में से ये 5 चैप्टर हम अच्छे पढ़े ना तो सिलेबस कंप्लीट समझो। बचे हुए जो 3 चैप्टर्स है, बचे हुए जो 3 चैप्टर्स है ना, वो उतने मतलब थ्योरेटिकल है। मैं आपको एक एक दिन में भी सिलेबस का वो, यू कैन बाय रीडिंग योरसेल्फ आल्सो यू कैन डू इट, बाय रीडिंग योरसेल्फ आल्सो यू कैन डू इट। गॉट इट? एंड समटाइम्स इफ आई मिस द लिंक, ऐसा कुछ हुआ तो देखो, कोई एक दो लोग मुझे इमीडिएटली फोन करना है या मैसेज भेजना, सर आज लिंक नहीं आया, क्लास है नहीं। आफ्टर ऑल आई एम यूर सीआर नाउ, समटाइम्स मी आल्सो मेक द मिस्टेक। आज मुझसे गलती हो गई, मैं शेड्यूल तो भेज दिया, लेकिन मैं समझा आज तो मैं 9:50 को आके बैठ गया, इसलिए गलती हो गई मुझसे, जब जल्दी बैठ गया। सो इफ सच थिंग्स हैपन, इमीडिएटली यू शुड रिमाइंड मी, सर आज आप लिंक नहीं भेजे, ऐसा कुछ जो भी है इमीडिएटली टेल। तो देखिए मैं अब इसमें क्या स्टार्ट करा, इसका क्या प्रॉब्लम है अभी डिस्कस करो मेरे को। अब इसके बाद सब डिफिकल्ट थिंग स्टार्ट होते, इसके बाद मैं तेरसगीज एनालिसिस स्टार्ट करूंगा। ओके, तेरसगीज एनालिसिस के बाद उसका डेरिवेशन करूंगा, बहुत लंबा डेरिवेशन है, आज तो मैं नहीं करता, उसको कल स्टार्ट करता हूं। आप बेसिक, आप आज जरा लेट बीस्ट हुआ मुझे, आप बेसिक देखो पहले। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि फाउंडेशन क्या है, सुपरस्ट्रक्चर क्या है। बिल्कुल आप हिंदी में बोल रहा हूं मैं आपको, फाउंडेशन क्या है, सुपरस्ट्रक्चर क्या है। तो उसके बाद फाउंडेशन में पर्पस क्या है, फाउंडेशन हम फाउंडेशन क्यों प्रोवाइड करते, उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि हम फाउंडेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमको एक फाउंडेशन को सेलेक्ट करना है, तो व्हाट द क्राइटेरियाज वी शुड हैव। आई एम सॉरी टुडे आई डिडंट सेंड द लिंक, इट इज माय मिस्टेक, but sometimes it happens, please you have to remind me। उसके बाद फाउंडेशन
पर्टिकुलर टाइप का फाउंडेशन हम सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज है, और उसके बाद शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन, दो टाइप के फाउंडेशन है। ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद बेसिक डेफिनेशंस आपको नहीं पता है तो एक बार और मैं जरा एक बार डिटेल में लेता हूं, आज पढ़ने दो एक बार और, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अच्छी तरह समझो बेसिक डेफिनेशंस क्या क्या है। हाँ, बेसिक डेफिनेशन में देखिए, सबसे पहले फाउंडेशन किसको बोलते हैं ये तो मैं आपको बता चुका हूं। फाउंडेशन किसको बोलते हैं ये तो आपको क्लियर है। फाउंडेशन के बाद फुटिंग किसको बोलते हैं? फुटिंग क्या है? ये फाउंडेशन का ही पार्ट रहता। अब सुनो, आप ये सब बेसिक को यहाँ डेफिनेशन ऑफिशियल स्लाइड की जरूरत नहीं है। फुटिंग क्या है? फाउंडेशन का पार्ट रहता। हाँ, जैसा इंजीनियरिंग कॉलेज का सवेरी इंजीनियरिंग कॉलेज है, सिविल डिपार्टमेंट उसका एक पार्ट है, तो वैसा ही फुटिंग जो है ये फाउंडेशन का पार्ट रहता। फुटिंग जो है ये फाउंडेशन का ही एक पार्ट रहता। गॉट इट? उसके बाद अब आता है ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी क्या है। तो ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी से पहले मैं आपको इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूं। आपको एक फिगर दिया समझिए मैं, और फिगर दिया मतलब यहां पर कंस्ट्रक्शन कुछ भी किया हुआ नहीं है, सिर्फ ग्राउंड लेवल है, और ग्राउंड लेवल के नीचे क्या रहता? मिट्टी रहता। तो नीचे मैं एक पॉइंट लिया तो उसके ऊपर क्या क्या लोड आते? उसके ऊपर, ऊपर ग्राउंड के ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन करे नहीं, आप फाउंडेशन खोदे नहीं, आपके पास फिटिंग है, फुटिंग है नहीं, तो आपको ऊपर उस पॉइंट के ऊपर लोड क्या आता? सिर्फ एक किसका लोड आता? मतलब जो सॉइल है वहां पर उसका लोड आता। व्हाट वी गेट इज, जो सॉइल है ना उसका लोड आता है। लेकिन सपोज करो इस ग्राउंड लेवल पे मैं कंस्ट्रक्शन करा, तो कंस्ट्रक्शन करने से पहले फाउंडेशन बनाऊंगा, फाउंडेशन में फुटिंग बनाऊंगा, तो फिर वही पॉइंट लूंगा मैं जहां पहले कंसिडर करा था। तो उस पॉइंट पे अब क्या क्या लोड रहेंगे? अब देखिए, सुपरस्ट्रक्चर का लोड रहेगा, इस बात को अच्छी तरह समझो आप। अब उस पॉइंट पे सुपरस्ट्रक्चर का लोड रहेगा, इजंट इट? सुपरस्ट्रक्चर के साथ साथ उसके ऊपर फुटिंग का भी लोड रहेगा फाउंडेशन में। उसके साथ साथ वहां पर जो सॉइल है हम उसका भी लोड ले रहे हैं, ओवरबर्डन प्रेशर का। तो तीन लोड्स हो गए, कौन कौन से? सुपरस्ट्रक्चर, फुटिंग और ओवरबर्डन प्रेशर। लेकिन कंस्ट्रक्शन से पहले क्या था? सिर्फ ओवरबर्डन प्रेशर था वहां पर, ना फुटिंग था ना सुपरस्ट्रक्चर था। अगर से हम तीनों भी लोड कंसीडर कर रहे, तीनों के लोड की वजह से जो प्रेशर बन रहा, इट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी। क्लियर है अब आपको? तो तीनों की वजह से, सुपरस्ट्रक्चर की वजह से, फुटिंग की वजह से, फिर जो पॉइंट है उसकी वजह से जो प्रेशर बनता, इट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी। ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी, ठीक है? अब देखिए या समथिंग, हाँ, ओवरबर्डन प्रेशर मींस, देखिए महेश, अब तुम क्या करो मालूम है? एक बीकर ले लो या एक घड़ा ले लो, ये कुछ भी लो, या लोटा ले लो, ग्लास ले लो, ग्लास ले लो, ग्लास में पानी डालो, उस पानी का सारा प्रेशर बेस में आता नहीं। ओके महेश? तो ये जो प्रेशर आता पानी का, ये हम कैसा देते मालूम है? आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े, दिस इज गिवन बाय P इज इक्वल टू W इंटू एच, स्टैटिक प्रेशर। ये टोटल प्रेशर पानी बेस के ऊपर कितना डाल रहा? W इंटू एच। हियर W इज कॉल्ड स्मॉल w, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, and it is taken as 1000 kg per meter cube। h अगर से 2 मीटर है तो 1000 into 2, 2000 kg per meter square वहां बेस पे प्रेशर बन रहा। तो उसी तरह जब मिट्टी रहता ग्राउंड लेवल से नीचे, ये मिट्टी क्या रहता? नीचे वजन डालता किसी पॉइंट पे, समझ रहे आप? किसी पॉइंट पे प्रेशर डालता, तो ये जो प्रेशर है इट इज कॉल्ड ओवरबर्डन प्रेशर। महेश, आर यू क्लियर नाउ? ये जो मिट्टी की वजह से नीचे किसी भी यस सर, यस सर। मिट्टी के हाइट की वजह से, और ये ओवरबर्डन प्रेशर कैसा निकालते हैं मालूम है आपको? इट इज कैलकुलेटेड बाय गामा इंटू डी। गामा इज यूनिट वेट एंड डी इज डेप्थ।
सपोज करो डेप्थ 2 मीटर है, गामा वहां पर 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, तो 16 इंटू 2 32 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वहां पर ओवरबर्डन प्रेशर है। समझ में आ रहा है आपको ओवरबर्डन प्रेशर मतलब? सपोज करो आपके सर पे एक पत्थर रख लिया, तो उस पत्थर की वजह से आपके पैरों पे जो प्रेशर आता है ना नीचे, फॉर्म, दैट इज ओवरबर्डन प्रेशर, दैट इज ओवरबर्डन प्रेशर। आई होप नाउ ओवरबर्डन प्रेशर इज क्लियर नाउ। जब हम ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी लेते हैं बेटा, व्हेन वी टेक द ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी वी विल टेक द वेट बिकॉज ऑफ सुपरस्ट्रक्चर, फुटिंग एंड ओवरबर्डन प्रेशर। लेकिन जब मैं नेट प्रेशर इंटेंसिटी निकालता हूं, ये टोटल ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी में से ओवरबर्डन प्रेशर को मैं कंसीडर नहीं करता। व्हाट आई थिंक इज आई हैव कंस्ट्रक्टेड हियर द फुटिंग, देयरफॉर नो नीड ऑफ टेकिंग द प्रेशर ऑफ सॉइल, प्रेशर ऑफ सॉइल। तो यहां पर मैं सिर्फ दो ही चीजें कंसीडर करता हूं, एक सुपरस्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर और दूसरा नीचे फुटिंग। So this is net pressure intensity. Now I hope the things are very much clear to you. What is meant by gross pressure intensity? What is meant by net pressure intensity? हो गया। उसके बाद आता ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी, मतलब जो प्रेशर डेवलप होता तीनों चीजों की वजह से। और नेट प्रेशर इंटेंसिटी मींस द प्रेशर डेवलप्ड बिकॉज ऑफ टू ओनली। ओवरबर्डन प्रेशर यहाँ कंसीडर नहीं करते हम। तो रिलेशन क्या है ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी में और नेट प्रेशर इंटेंसिटी में? ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी इज डिनोटेड बाय Q and whereas this is denoted by Qn, and Qn is equal to net pressure intensity is equal to gross pressure intensity minus gamma D. Gross pressure intensity minus gamma D. Gross pressure intensity minus gamma D. Got it? So अब बेरिंग कैपेसिटी क्या है? ये सॉइल का सपोर्टिंग पावर है। तो हम अगर से ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी को सपोर्ट करने के लिए जो सॉइल में सपोर्ट चाहिए उसको बोलते हैं अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी। इट इज कॉल्ड अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी। एक एक चीजें बिल्कुल क्लियर करो आप। ये स्लाइड मेरे पास वो दूसरा स्लाइड है, मैं कर डालूंगा, स्लाइड का इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको अब मेरे ख्याल से क्लियर है कि व्हाट इज आई मीन ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी एंड व्हाट इज what was called net pressure intensity. ये सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए। what is gross pressure intensity and what is a net pressure intensity. ये आपको क्लियर नहीं है तो आगे के डेफिनेशन मालूम नहीं होते, आगे के डेफिनेशन आपको क्लियर नहीं होते अगर से आपको ये नहीं मालूम हुआ कि ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी क्या है, नेट प्रेशर इंटेंसिटी क्या है। ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी के बाद देखिए ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी हुआ, नेट प्रेशर इंटेंसिटी हुआ। अब मैं बेरिंग कैपेसिटी डिनोट करता हूं तो नेक्स्ट आता है अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी। इट इज द मैक्सिमम प्रेशर दैट अ फाउंडेशन सॉइल कैन विथस्टैंड विदाउट अंडरगोइंग shear फेल्योर। मतलब ये सॉइल का वो पावर है जो विदाउट फेल हो गए सारे ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी को लेता। इट इज कॉल्ड अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी। इट इज कॉल्ड अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी। जबकि नेट बेरिंग कैपेसिटी क्या है? नेट बेरिंग कैपेसिटी में QNF, नेट बेरिंग कैपेसिटी सिर्फ नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी नेट प्रेशर इंटेंसिटी को लेता। यहां पर ओवरबर्डन को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। और जैसा ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी में और नेट प्रेशर इंटेंसिटी में जो रिलेशन है वही बेरिंग के अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी में है और नेट बेरिंग कैपेसिटी में है। अब आप पूछेंगे सर ये हमको सेम लग रहे, ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी और अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी सेम लग रहे, ये भी तीनों के लिए, ये भी तीनों के लिए। तो याद रखो बेटा ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी प्रेशर दे रहा, जैसा मैं आपको प्रेशर देता हूं, ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी आपको प्रेशर दे रहा है, जबकि अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी को प्रेशर लेना पड़ता है। वो तीनों का जो प्रेशर लेता, जो टीचर का प्रेशर आप लेते, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी आपके पास होना चाहिए। ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी मैं दे रहा हूं आपको। ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ सुपरस्ट्रक्चर, फुटिंग और ओवरबर्डन प्रेशर की वजह से आता। और आपके सॉइल में इतना अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी होना चाहिए कि वो ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी को ले सके, उसको बियर कर सके।
अगर से आपका अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी से ज्यादा है तो आपका सॉइल फेल नहीं होगा। लेकिन अगर से आपका अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी कम है, ग्रॉस परसेंटेज थोड़ा कम है, ज्यादा फर्क नहीं है, तब जनरल शियर फेलियर हो जाएगा। उससे और थोड़ा कम है तब लोकल शियर फेलियर हो जाएगा। अगर से आपका अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी से बहुत 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 कम है तब पंचिंग शियर फेलियर हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? पंचिंग शियर फेलियर हो जाएगा, आपका सॉइल धंसने शुरू हो जाएगा। युअर सॉइल विल देन धसणे सुरू हो जाएगा, डब काय म्हणतात तुम्ही ते दाबून जाईल पूर्ण, सेटलमेंट होईल ते। सो ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्रॉस परसेंट, ये मार्क्स के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, बार बार आपको इतना क्यों रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, मार्क्स के लिए मत पढ़ो आप, एक 5 चैप्टर आप अच्छी तरह से पढ़ो, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लो। ये वी आर अनफॉर्चुनेट दैट वी आर नॉट इन द क्लासरूम, नहीं तो मैं क्लासरूम में रहता तो आपको बहुत क्लियर बताता। नेक्स्ट वीक जब प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे तो प्लीज ट्राई टू कम, एटलीस्ट वीक में एक बार आप आ सकते प्रिकॉशंस लेके। जो पंढरपुर और अप टू मंगलवेढ़ा वाले ये तो आराम से आ सकते, जो दूर वाले भी है तो वीक में एक दिन देखिए कुछ हो सकता तो आइए। तो व्हाट आई वांट टू इज अलोंग विद प्रैक्टिकल वी कैन डिस्कस सम थ्योरी पार्ट आल्सो, जो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं बोर्ड पे कुछ बताऊंगा आपको। कम से कम यू मिस्ड द ट्रेन दिस टाइम, बट एटलीस्ट नेक्स्ट गेट के लिए तो आप सॉलिड हो जाओ, इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू। और देखिए आप लोग भी एग्जाम लिखे होंगे गेट का पेपर उतना मुश्किल नहीं रहता, याद रखो। आपको कॉन्सेप्ट मालूम रहना, आपको फॉर्मूले याद रहना तो आप आराम से कर सकते हैं, इतना कोई बड़ा काम भी नहीं है। बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड रेगुलर, ये बहुत अंदर से विल पावर बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, वो आपके पास बिल्कुल नहीं है। हाँ आप लोग जबरदस्ती को पढ़ते हैं, आपके फादर भेज रहे, सर घर को फोन करते बोल के पढ़ते, ऐसा मत पढ़ो आप अपने लिए पढ़ रहे, थोड़ी किसी और के लिए पढ़ रहे। Okay, so I think now the thing is clear, what is gross pressure intensity, what is net pressure intensity, what is ultimate bearing capacity, what is net ultimate bearing capacity. So net ultimate bearing capacity net pressure intensity लेने के लिए रहता, और ultimate bearing capacity gross pressure intensity लेने के लिए रहता। तो ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी प्रेशर देता, ये तीनों की वजह से आता। अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी प्रेशर लेता ही, आपके सॉइल में इतना अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी होना चाहिए कि ये उसको सपोर्ट कर सके, दिस शुड एबल टू सपोर्ट इट, गॉट इट। एंड सिमिलरली देयर इज द रिलेशन बिटवीन नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी एंड नेट प्रेशर इंटेंसिटी। और जैसा ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी और नेट प्रेशर इंटेंसिटी में रिलेशन है, उसी तरह अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी क्यूएफ और नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी में भी रिलेशन है, दैट इज QNF इज इक्वल टू QF माइनस सिग्मा बार और गामा डी। ये ओवरबर्डन प्रेशर है महेश, सिग्मा बार इज ओवरबर्डन प्रेशर। ओवरबर्डन प्रेशर मतलब अगर से ठहरा हुआ सॉइल है, उस सॉइल की वजह से नीचे, उस सॉइल का वेट होता ना, सॉइल इतना हल्का थोड़ी रहता, तो वो सॉइल अपना वेट नीचे की तरफ डालता नहीं, इट इज कॉल्ड ओवरबर्डन प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर है ये। आपको पढ़ाई के अलावा भी और कुछ घर का काम लगाए तो दैट इज द ओवरबर्डन प्रेशर। आप बोलते मुझे कितना काम लगा रहे आप, सो दैट इज द ओवरबर्डन प्रेशर। So I hope now these 4 things are very much clear to you. What is gross pressure intensity, what is net pressure intensity, what is ultimate bearing capacity, what is net ultimate bearing capacity. Remember, net ultimate bearing capacity is given as QF minus, that is ultimate bearing capacity minus overburden pressure, minus overburden pressure. So when you come to a net safe bearing capacity now, What is the net safe bearing capacity? मैं आपको बोला था फैक्टर ऑफ सेफ्टी में, आपको बहुत डिटेल में बताया कि आपके पास मतलब सेफ होना चाहिए कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। मतलब देखिए आपको, आप 2 रोटी खा रहे हैं तो आपके पास 3 होने चाहिए, तो आप 1.5 टाइम्स सेफ है। उसी तरह अगर से हम नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी को किसी फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करें तो दैट इज नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी। Why the soil is fail only in shear, sir, please? Okay, Mahesh, you see here, soil क्या रहता मालूम है? soil का elasticity जो रहता ना बहुत कम रहता। soil का elasticity प्रॉपर्टी रहा तो वो टेंसाइल या कॉम्प्रेशन में फेल होता। यहाँ पर टेंसाइल और कॉम्प्रेशन फोर्सेस बिल्कुल soil में नहीं रहती। दिस वेरी गुड क्वेश्चन।
यू शुड रिमेंबर दैट टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव, कॉम्प्रेसिव कभी कभी आ जाता थोड़ा बहुत, तो टेंसाइल तो बिल्कुल नहीं रहता सॉइल में। सॉइल मैक्सिमम, सॉइल में जो भी प्रेशर आता वो शियर आता। शियर इसीलिए आता क्योंकि सॉइल बहुत माइन्यूट रहता, ये एक दूसरे को डेन नजदीक रहने से ये हमेशा मूवमेंट इसको हॉरिजॉन्टली रहता, हॉरिजॉन्टल रहता। शेयर मालूम है ना आपको, शेयर कैसा रहता? शेयर आप एक कैंची से जब काटते कब पत्ता मतलब पेपर, इट इज शेयर फेल्यूर। वैसा ही हम एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रगड़ो आप, ये शेयर रहता। तो इस टाइप का फेल्यूर सॉइल में आता। तो इसीलिए 90% केसेस सॉइल फेल होने का शेयर में ही होता, ना ही टेंसाइल में, ना ही कॉम्प्रेशन में। वेरी गुड क्वेश्चन दिस इज। सो रिमेंबर, ऑलवेज सॉइल टेक्स shear failure only, always soil takes shear failure only. Okay, so and the thing I will tell you, if you want to make your career further, so geotechnical engineering आपको पढ़ना है, एमटेक करना है, तो आप स्ट्रक्चर में मत करो प्लीज। इतने लोग स्ट्रक्चर में करते हैं, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में एमटेक किए वाले बहुत कम मिलते। फील्ड में भी बहुत स्कोप है इसका आजकल, ये नया ब्रांच और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये थिंग्स, इतना आसान नहीं है। आप यकीन नहीं कर सकते, पूरे यूनिवर्सिटी में आई एम द ओनली मैन विथ जियोटेक एमटेक। पीएचडी तो छोड़ो, आप हुआ मेरा, तो आई एम द ओनली मैन विथ एमटेक जियोटेक। किसी भी कॉलेज में किसी भी नहीं है, डब्ल्यूआईटी में नहीं है, उतना पुराना कॉलेज है, शिवगढ़ में नहीं है, किसी भी शिवगढ़ में कोई भी कहीं पे भी एमटेक जियोटेक में नहीं है। आपको हर कॉलेज में एमटेक स्ट्रक्चर के, एवरीबॉडी इज एमटेक स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या है, सभी लोग करते हैं। ऑफ कोर्स फील्ड में ज्यादा यूज होता है स्ट्रक्चर, बट करियर बनाने के लिए आप फाउंडेशन इंजीनियरिंग और ये जियोटेक करो, बहुत अच्छा है आगे इसके लिए। और इसका काम भी आप सीखे तो बहुत मतलब इट्स बीन हैंड्स बहुत कम है, बहुत कम मिलते हैं आपको। ओके, सो नाउ कमिंग टू सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। मैं आपको बोला था आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी से नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी को डिवाइड करो, दैट इज QNS, इट इज नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। जब मैं प्रॉब्लम करूंगा और बहुत सी चीजें आपके क्लियर हो जाएंगे, दिस इज नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। और सेफ बेयरिंग कैपेसिटी मतलब देखिए, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी इज गिवन बाय QNS, दैट इज नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी प्लस गामा डी, प्लस गामा डी। क्योंकि नेट रहा तो माइनस करते, ग्रॉस रहा तो ऐड करते। तो यहां पर सेफ बेयरिंग कैपेसिटी में भी QNS प्लस गामा डी। और आपको QNS तो पता है, QNS इज इक्वल टू QNF बाय F प्लस गामा डी, QNF बाय F प्लस गामा डी। सो दिस इज द, ये 6 डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर रहना। ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी क्या है, नेट प्रेशर इंटेंसिटी क्या है, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, उसके बाद नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, उसके बाद सेफ बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी क्या है। इफ यू मतलब ये 6 चीजों में आपको क्लियरिटी आ गई, तो देन आगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर मिलता, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर मिलता। ओके, तो इसके बाद आप एक 2-4 मिनट, वंस अगेन आई एम वेरी सॉरी दैट आई कुडंट गिव यू द लिंक टुडे, just unnecessarily I was blaming you people only that students are late। मेरे दिमाग में तो बहुत चल रहा था, मेरे को आज सबके घर को फोन करूंगा, सबको कंप्लेंट करूंगा, बट इट इज माय फॉल्ट। स्ट्रेंथ इज ठीक ही है, तो इट इज माय फॉल्ट, बट समटाइम्स इफ इट हैपेंस मींस, सो प्लीज फील, किसको तो CR बनाना पड़ेगा मुझे याद दिलाने के लिए। फिर आपको कोई भी जो रेगुलर है, आपको इमीडिएटली मुझे फोन करो या बोल दो कि सर लिंक नहीं आया। किसी भी मैटर के लिए हम लोग CR है, मैं और बागल मैडम, A या B दोनों भी अपना ही समझो। कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो हमको फोन करते जाओ, इट विल बी बेटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉर सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, दैट आई विल एक्सप्लेन अक्षय। हाँ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होना चाहिए अक्षय पूछ रहा, आफ्टर दिस आई विल टेल यू। अब एक ब्रेक ले लो, फिर मैं आपको आते ही वही बताऊंगा।